Welcome to Arc Solution, your go-to destination for all things related to technology and software solutions. Our channel is dedicated to providing you with expert insights, tips, and tutorials to help you navigate the constantly evolving world of technology. Don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell to stay updated with our latest content. Thank you for tuning in to Arc Solution. Welcome back, guys. In Node-RED series we are going forwards. Till now we learn about how to read the data from the 1500 PLC in the Node-RED, and we also learn about how to connect the SQL database. So today, a combination of the all of stuffs, we are going for the read the data from the PLC. Consider that in your PLC systems you have the tank, and you need to be log the data of the tank in the SQL. So our today's motto is read the data from the PLC and write in the SQL table, and it will be the store, and we can use that stored data for the reporting purpose. So how the Node-RED will be the help to us. So we'll start directly. Here we have the created small project in the S7 1500, and you already know how to create the project in the S7 1500 in TI portal. So here I'll just make the tag 150 MW150, that is we can do the any just consider as it is the reading. Consider that this reading is the tank level. So it's a tank 1. So from the tank 1 we are reading the data, that is the level. Then we also read the data agitator speed. Consider that is the MW52. Okay, and this is in integer format with decimal, so we can consider there is a 500 is the agitation speed. So we go for the log this both data. First of all this data, then the second data. Okay, so as usual step is the common. So we need to be write the PLC program in the PLC, and then we can go for the open the Node-RED. So we have the open the Node-RED. In Node-RED, so communication for the PLC, we already learn about that, how to read the data from the PLC, but we will try to recap that session also. So here is the S7. In S7 there is the read data, write data, that stuff is available. So I'll make it read. The is write the IP address of the PLC. This is my PLC IP address, port number 102, slot number, and I need to be write the here I have make tank level. This is the marker, it's memory bit, offset 50, and one quantity is the one session. So I need to be add another one. I'll just make it marker, that is the value of the agitator RPM is the integer value, and it's 52, and I'll write it AGG underscore RPM. Okay, I'll just update it. So setting is done. So I go for the read the data. So I need to be check is reading the data is the correct or not, or I'll just inject it using manual injector, and one more function is the debugger. So I'll just put it one debugger, so for my information purpose, and deploy.
once the deploy is done, so here is the shows that we are the connected to the PLC. So in deploy, I'll just make it okay. Here is the signals name is the tank level, path is the path, and the value is the 86. That value is the we have already written in the watch table. Where is the watch table? Here is the watch table. This is 86. I'll just modify it is the 34, then I'll make it 34. Then I need to be check in this section. Okay, it's 34. Okay, it's good to be we can able to read the data, but we need to be write in the SQL. So for that I'll make it a SQL connection, SQL MS SQL. So we have I have configured the MS SQL. So you already know how to connect the MS SQL. यदि वो जानना है तो आप मेरे लिस्ट है नोड-रेड के लिस्ट में आपको दूसरा या तीसरा चैप्टर मिलेगा कि कम्युनिकेशन करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे MS SQL के साथ कनेक्शन MS SQL का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। तो MS SQL के कॉन्फ़िगरेशन में हम देखेंगे तो हमें जो मेजर पार्ट है कि वो हमें का यूज़र नेम और यूज़र का पासवर्ड और एक डेटाबेस, जो डेटाबेस आपने कनेक्ट किया। ओके, अभी हम इसको डायरेक्टली अभी यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये डेटा राइट नहीं करेगा। सो हम क्या कर रहे हैं, उसी डेटा को यहाँ पे देखिए, ये डेटा जो मिल रहा है हमें ये JSON फॉर्मेट में मिल रहा है और ऐसे हम नहीं राइट कर सकते। तो उसके लिए हमने एक फंक्शन क्रिएट किया। मैं थोड़ा सा ठीक से कर देता हूँ। फंक्शन क्रिएट कर दिया और ये फंक्शन को हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये फंक्शन में हमने जो लिखा है ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए message.payload, मतलब जो पीछे से मैसेज आ रहा है उसको हमने टेम्प में डाल दिया और टेम्प में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे टेबल नेम डाल दिया। तो टेबल नेम में जो टेम्प में देखिए, इसमें इस ऑब्जेक्ट में ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे देखिए message.payload में मिल रहा है। message.payload में जाओ और उसमें ये सिग्नल करके जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, टेबल नेम में पुश करेंगे। ये वेरिएबल है, उसमें हम लोड करेंगे। मतलब ये टैंक लेवल जो है ये हमें मिल गया टेबल नेम में। ओके, अभी दूसरा है कि टेम्प में जो वैल्यूज़ है, जो वैल्यू है, यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है वो वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू वेरिएबल बनाया उसमें पुश कर रहे हैं। और तीसरा है कि डेट टाइम। तो डेट टाइम का एक फंक्शन है न्यू डेट, उससे हम ISO स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके टाइम स्टैम्प में ले लेंगे। और फिर हमने एक क्वेरी जनरेट किया। क्वेरी है इंसर्ट इनटू टैंक लेवल वैल्यूज़ और वैल्यूज़, ये नॉर्मल वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए हमने उसको क्वेरी में लिख दिया। ये क्वेरी हमने टॉपिक में, और ये टॉपिक जो है message.payload में हमने ये कर दिया, पुश कर दिया। और वही मैसेज अभी आगे जाके इस फंक्शन का मैसेज देखेंगे तो ये हमारा, हम यहाँ पे चेक करते हैं, डिबग में डाल के उसको डिप्लॉय करेंगे। और डिप्लॉय करने के बाद डिप्लॉय कर दिया, ये पुराना एरर हटा दिया और मैंने ये कर दिया। ये देखिए यहाँ पे क्वेरी मेरा ये हो गया। तो इस क्वेरी को हम यदि चेक करेंगे SQL में, तो SQL में ये क्वेरी कोई भी एरर नहीं क्रिएट करी, मतलब इट्स राइट क्वेरी। ओके, तो SQL में हमने यहाँ पे टैंक वन करके एक DB बनाया। उस टैंक वन के DB में यदि चेक करेंगे, टैंक वन के DB में चेक करेंगे तो हमें फ़िलहाल कोई डेटा नहीं है। अभी ये हमें डेटा राइट करना है, तो वी शुड बी नो
अनदर प्रोसीजर। यहाँ पे देखिए हमने डेटा S7 से डेटा रीड कर दिया, फंक्शन से उसको क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया, और ये फंक्शन से सॉर्ट करने के बाद हम उसको कनेक्ट करेंगे MS SQL के नोड को। MS SQL के नोड को कनेक्ट करने के बाद हम उसे चेक करेंगे। ये हो गया डिप्लॉयटेशन। MS SQL के आप यहाँ पे टेबल में चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी डेटा, कुछ भी डेटा नहीं है, नहीं कोई रॉ डेटा नहीं है। ये डिप्लॉयटेशन सक्सेसफुल हो गया, डिप्लॉयड हो गया। अभी सक्सेसफुली डिप्लॉय होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करने के बाद हम ये चेक करना चाहते हैं कि उसका रिस्पांस आएगा। ओके, इट्स अनडिफाइंड मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्पांस आया। हम SQL में जाके चेक करेंगे। SQL में उसका टॉपिक को सॉरी वैल्यूज़ में, ये टॉपिक नाम नहीं चाहिए था, मैंने गलत नाम ये किया। यहाँ पे वैल्यूज़ चाहिए और ये टॉपिक और वैल्यूज़ ऐसे दो चाहिए। ओके, गलत हो गया मेरा, ये टेबल गलत हो गया। तो टॉप इसमें हम और एक ऐड करेंगे। उसे हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट ड्रॉप एंड क्रिएट न्यू क्वेरी एडिटर। यहाँ पे सेंसर नेम में ये हो गया टॉपिक टैंक लेवल वैल्यू। ओके, यहाँ पे हमने ये जो टेबल नेम है, टेबल नेम यहाँ पे डिप्लॉय नहीं किया। तो ठीक है, हम अच्छी तरह मानते। आपको ये भी पता है कि कोई भी फंक्शन को हम यहाँ पे कॉमा देके ये करेंगे। हमें क्या करना है, वैल्यूज़ जो भी आपको पता है कि क्वेरी हम वैल्यूज़ वो सिंगल कॉलन में लिखते हैं, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे सिंगल कॉलन, डबल कॉलन, प्लस प्लस और ये वैल्यूज़, लेकिन ये सिंगल कॉलन के पहले एक स्लैश और ये सिंगल के कॉलन के पहले एक स्लैश। ओके, तो हमने क्या कर दिया, उसको क्वेरी चेंज कर दिया। लेकिन क्वेरी में हमने टेबल नेम को, जो टेबल नेम में जो आएगा वो आपका सेंसर का नाम आएगा। तो हमें ये क्यों स्लो हो गया है इतना, मेरा लैपटॉप बहुत ही स्लो हो गया है। ओके, तो हमने क्या कर दिया, एक यहाँ पे देखिए इंसर्ट इनटू, यहाँ पे नाम आएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगा और यहाँ पे टाइम स्टैम्प आ गया। ओके, गुड। SQL भाई, SQL ठीक, यहाँ पे देखिए टॉपिक, टाइम स्टैम्प और फिर आना चाहिए था रहेगा एनवायर कैर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एनवायर कैर 10। ओके, और इसको हम करेंगे क्रिएट। तो एग्जीक्यूट होने के बाद हम इसे करेंगे रिफ्रेश। क्या हो गया, इसे बहुत ही स्लो गई है। ठीक है, और टैंक लेवल में राइट क्लिक करके टैंक लेवल का जो टेबल है उसे ओपन करेंगे।
तो यहाँ पे 3 कॉलम आ गए, टॉपिक्स, वैल्यूज़ और टाइम स्टैम्प। ठीक है, हमने भी यहाँ पे भी तो 3 टॉपिक्स क्रिएट करे, डन कर दिया, डिप्लॉय कर दिया और उसको मैनुअली इंजेक्ट कर दिया। मैनुअली इंजेक्ट करने के बाद अनडिफाइंड आ गया, एसक्यूएल के टेबल में एग्जीक्यूट करेंगे तो आया टैंक लेवल 34 और उसका टाइम स्टैम्प। अभी ये जो है ये हमने मैनुअली क्रिएट करके दिया, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें कैसे चाहिए कि वो पीएलसी का डेटा हर एवरी 5 सेकंड के बाद डेटा रीड करे। सो यहाँ पे रिपीटर लगा दीजिए, इन्वर्टर कर दीजिए, यहाँ पे 5 सेकंड कर दीजिए, डन कर दीजिए और डिप्लॉय कर दीजिए। अभी डिप्लॉय करने के बाद देखिए डिप्लॉय करने के बाद हर एक 5 सेकंड में और वो उसका वैल्यूज़ अपडेट करेगा। यहाँ पे देखिए हमने उसको चेक कर दिया, 3 वैल्यू आ गए, 4 वैल्यू आ गए। अभी हम पीएलसी में जाएंगे और उसकी वैल्यूज़ चेंज करेंगे 55। तो 55 यदि वैल्यू हो गई है तो 55 उसमें 55 अपडेट होनी चाहिए। 5 सेकंड लगता है, 55 अपडेट हो गई, ओके। लेकिन हमने ये ठीक से नहीं किया तो उसको बोलेंगे ऑर्डर बाय टाइम स्टैम्प ऑर्डर बाय टाइम स्टैम्प DESC। तो यहाँ पे देखिए लेटेस्ट वैल्यू ऊपर आ गई। तो हम फिर से चेंज करेंगे, उसको करेंगे अभी 12। तो 12 चेंज करेंगे तो देखिए, तो आपने एग्जीक्यूट कर लिया, फिर से एग्जीक्यूट कर लिया, अरे कुछ गलती कर दिया, ये लिया, ओके सॉरी, ये वैल्यू आ रहे हैं। तो यह है एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प के अगेंस्ट में आपके वैल्यूज़ सेव हो रहे। तो गाइज़ ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है कि हम पीएलसी के सारे वैल्यूज़ सारे एक ध्यान में रखिए कि ये यदि हम टूल यूज़ करते हैं तो बिना पीएलसी में कुछ प्रोग्राम चेंज किए हम पूरे वैल्यूज़ डेटा लॉक कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़, और ऐसे इंटरेस्टिंग आगे बहुत सारे वीडियो हम बनाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।